کہتے ہیں کہ میں ان تینوں کا فہم بیان کروں گا. پہلا فہم سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160. پھر انہوں نے آیت پڑھی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں روشن ہدایات کی بات کو، وہ جو ہم نے نازل کی ہے من بعد ما بینہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے تو بیان کر دیا، فی الکتاب اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں. اور آپ کو میں نے وہ حدیث شروع میں بتا دی، مرزا جی کے الفاظ، اور آپ کو میں نے وہ حدیث شروع میں بتا دی کہ وہی خرابیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی. اور وہ چھپاتے کیوں ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر ہی خوش رہے جو وہ اپنے اسی کنویں کا مینڈک بنا رہے جو اس کے پاس موجود ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت رہے گی اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کب تک؟ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ ہی نہیں واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح ہی نہیں وبینوا، اور وہ باتیں جو چھپائی تھی بیان بھی کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو. اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے، ساتھ والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو نہیں پتا ہوتا. آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ جاتی ہے، سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے. اچھا سمجھو ذرا اس بات کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچارے مرزا جی جو بار بار جو نا یہ گھما پھرا کے جو نزلہ علماء پہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء نہیں بتانے دیتے، علماء نے خام. دیکھیں سمجھو ذرا اس بات کو. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اس کے سوائے نہیں کہ جو علماء ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اب سمجھے ذرا اس بات کو. مرزا جی یک زبان ہو کر علماء، اور کبھی کبھی جب زیادہ اپنے جوبن پر آتے ہیں مرزا جی، تب بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع تینوں کے علماء. اور اس میں ہمارا بھی ذکر کریں، سوری میں اپنا نکال گیا، معذرت چاہتا ہوں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء، اہل تشیع کے علماء، باقی پھر چائنا سے بن کے نہیں آ رہے علماء. میری بات آپ سمجھیں. مثال کے طور پہ یہی ہیں پاکستان کے اندر گنی چنی جو علمی وراثت ہے وہ یہی علماء ہے. بات سمجھیں. مرزا جی یک زبان سب کے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ پبلک سے حق کو چھپا رہے ہیں. مرزا جی یہی تو تاثر دے رہے ہیں، یہ پبلک سے حق کو چھپا رہے ہیں. میں مرزا جی کے مقلدین سے چوتھا سوال کر رہا ہوں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوائے نہیں کہ اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. اس آیت سے مراد موجودہ زمانے میں کون حضرات؟ مرزا جی نے تو وہ چپ سادھنی ہے کہ بات چھوڑ دو. انہوں نے تو زہر کا پیالہ پی لینا ہے، انہوں نے جواب نہیں دینا. لیکن مرزا جی کے مقلدین سے میرا یہ، مرزا جی کے سننے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ مرزا جی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے تو یک زبان سارے علماء کو کہہ دیا نا کہ بھئی یہ سبھی دھوکے باز فراڈی ہیں. ٹھیک ہے بھئی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی علماء، عیسائی، انہیں بھی آپ نے ابھی کہہ دیا کہ انہیں تو خرابی آ گئی. اچھا صحابہ کرام، ان پہ ہی آپ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. تابعین، ان پر آپ تنقیدات کرتے رہتے ہیں. تبع تابعین، یہ بات کے حضرات نہیں کوئی آپ کے من پسند ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ نام لیں کہ فلاں جیسے فلاں جیسے فلاں جیسے، تو میں آپ سے پوچھیں گے تو صحیح نا، یہ جو آپ نے فلاں 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 کو اس آیت کا مصداق مانا کن دلائل کی بنیاد پر؟ وہ دلائل کیا تھے کہ پتہ لگے اس آیت سے مراد جو علماء ہیں وہ یہ ہیں؟ نہیں. تو میرا مرزا جی کے مقلدین سے مطلب یہ گزارش ہے، علماء کے معاملے میں احتیاط برتیں. اگر آپ یک زبان سارے علماء سے نام لے کے بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، تو آپ کو یہ آیت سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خشوع والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، ڈرنے والے علماء ہیں. اگر اب مثال کے طور پر آپ چند کرپٹ، چند دنیا دار، چند خود غرض، چند لالچی، چند غاصب مولویوں کی وجہ سے
अगर आपने सारे उलमा पे नकीर करनी है तो फिर वही वाली बात है ना कि देखें, इस यानी तलवार से तो आप भी जख्मी हो सकते हैं, इसी तरीके से तो आप पर भी हर्फ आ सकता है। इसलिए उलमा के मामले में मोहतात रवि जरूरी है। आज हम तक जो दीन पहुंचाई ये इन उलमा की मेहरबानी है, हमें आगे कोई अलग से जिब्राइल थोड़ी देकर गया है दीन। अच्छा देखें, उसके बाद मिर्जा जी कहते हैं कि ये जो आयत है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हक बात छुपा लेते हैं। अच्छा क्या होगा हक बात छुपा लेते हैं? कंक्लूजन मिर्जा जी आगे जाके क्या निकालेंगे, आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, सुनने वाले हजरात, वीडियो देखने वाले हजरात भी नोट कर लीजिएगा। कंक्लूजन आगे जाके मिर्जा जी क्या निकालेंगे? मिर्जा जी ये निकालेंगे कि हक बात को छुपाने का मतलब है वो तारीखी रिवायात जिनसे मिर्जा जी साहबा के इख्तलाफात का जिक्र करेंगे, मिर्जा जी साहबा पे तनकीदात करेंगे। अब मिर्जा जी के कहने का मतलब यह है कि इस आयत से मुराद यह है कि उलमा वो जो तारीखी बातें चाहे वो सही हैं या नहीं, जो लोगों को बयान नहीं करते, मिर्जा जी इस आयत से मुराद जो ना ये ले रहे हैं कि ये हक बात छुपा ले, क्योंकि आगे तो आप देख ले पूरी वीडियो, मिर्जा जी यही तो सब बातें करेंगे। अब ये मेरे हाथ में तफसीर इब्ने कसीर है, ये तफसीर इब्ने कसीर की ये जिल्द नंबर 1 है। जिल्द नंबर 1 का सफा नंबर 215 है। मिर्जा जी की बयान करदा आयत, मिर्जा जी ने कहा सल्फ का फहम बताऊंगा। मिर्जा जी हराम है, सल्फ का फहम मिर्जा जी से उसी जगह बताएंगे जहां मिर्जा जी की अपनी दाल जलने वाली होगी, गलने वाली नहीं, जलने वाली होगी। मिर्जा जी सिर्फ वहां पे सल्फ का फहम बताएंगे, और वो भी अपना मनपसंद। वो तो हम इंशाल्लाह उस पर आप भाइयों को तवज्जो दिलाएंगे ना इंशाल्लाह। आप जरा समझिएगा जरा इस बात को। अब देखें यहां सल्फ का फहम, इस आयत से सल्फ ने मुराद क्या ली? मिर्जा जी ने जहर का प्याला तो पी लेना बताना, मिर्जा जी ने पूरी वीडियो कर दी, ये नहीं बताया। ये हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन आयात में उन लोगों के लिए जबरदस्त धमकी है जो अल्लाह ताला की बातें और शरई मसाइल छुपाया करते थे। क्या छुपाया करते थे भाई? अल्लाह ताला की बातें, वही इलाही, अल्लाह ताला की बातें, वही इलाही और शरई मसाइल छुपाया करते थे। अहले किताब मिर्जा जी के फेवरेट यहूद व नसारा, अहले किताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को छुपा लिया था, जिस पर अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया कि हक के छुपाने वाले ही लानत ज़दा लोग हैं। जिस तरह उस आलिम के लिए जो लोगों में अल्लाह की बातें फैलाए, हर चीज इस्तगफार करती है, यहां तक कि पानी की मछलियां और हवा के परिंदे भी, इसी तरह उन लोगों पर जो हक बात को जानते हुए गूंगे और बहरे बन जाते हैं, हर चीज लानत भेजती है। यार इंसाफ करो भाई, इंसाफ करें। देखें यक जबान होकर मिर्जा जी ने इस आयत से उलमा पे तनकीद की। सल्फ का फहम क्या है कि हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अव्वल तो बता रहे हैं कि इस सवरात कोई तारीखी बातें नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बयान करता वही और शरई मसाइल है। नंबर 1। नंबर 2, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह खुद बता रहे हैं कि जिस तरह उस आलिम के लिए जो लोगों में अल्लाह की बातें फैलाए, हर चीज इस्तगफार करती है, तो जो ना फैलाए, शरई मसाइल छुपाए, उस पर हर चीज लानत करती है। तो मिर्जा जी ने उलमाए 2 कैटेगरीज में बताया, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 कैटेगरीज के अंदर उलमा बताया। पहले उलमा हक, जो लोगों को दीन सिखाते समझाते, उनकी इस्लाह करते हैं, उनको अमाल के लिए, नेक अमाल के लिए खड़ा करते हैं और बदअमालियों से रोकते हैं। दूसरा वो तबका है कि जो मिर्जा जी जैसे लोग, जिनको मशहूरियत चाहिए, जिनको दुनियावी मालो मता चाहिए, जिन्हें मालो असबाब चाहिए, जिन्हें लोगों का एक जम्मे गफीर अपने पीछे चाहिए, दूसरे मिर्जा जी जैसे लोग हैं। इसी तरीके से आप ये देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफा नंबर 650-651 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते फरमाते हैं अल्लाह ताला ने खबर दी है कि जो नाजिल शुदा बैयनात और हिदायत को छुपाता है वो लानत ज़दा है। नाजिल शुदा यहां तारीखी रिवायात की बहस नहीं हो रही, यहां तारीखी वाकयात की कोई बहस नहीं हो रही। इस आयत में बहस है अल्लाह की वही की, अल्लाह के उतारे हुए दलाइल की, हिदायत की। फरमाया इसकी मुराद में इख्तलाफ है, इसकी मुराद में इख्तलाफ है। बाज उलमा ने फरमाया इससे मुराद यहूदी और ईसाई राहिबीन हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के जिक्र को छुपाया करते थे। यहूद ने यानी रहम के अमर को छुपाया, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर रहम भी करता है, यहूद ने इसको छुपाया।
बाज उलमा ने फरमाया इससे मुराद हर वो शख्स है जिसने हक को छुपाया। ये हर शख्स में आम है, ख्वाह जिसने दीन के इल्म को छुपाया जबकि उसको फैलाने की जरूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में इसकी तफसीर की गई है, जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई जिसको वो जानता था फिर उसने उसे छुपाया तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन आग की लगाम उसे डालेगा। मिर्जा जी ने भी इस रिवायत को बयान किया। आगे कहते हैं इस हदीस को सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने रिवायत किया है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु का कौल इसके मारिज है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु का कौल इसके मारिज है। तवज्जो सुने तमाम भाई, बहुत काम की बात है। तू किसी कौम के सामने ऐसी हदीस बयान करे जिस तक उनकी अकलें नहीं पहुंचेंगी तो वह बाज लोगों के लिए फितने का बायस होगी। आप देखो तो सही, अल्लाह की कसम, ये मिर्जा जी की हकीकत है। देखो वही आयत जो मिर्जा जी ने बयान की है उसी की तफसीर करते हुए देखो सल्फ का फहम, जो मिर्जा जी ये कहकर बैठे थे कि मैं सल्फ का फहम बयान करूंगा, अगर मिर्जा जी इसके लिए सल्फ का फहम यानी इन आयात को समझाने के लिए तफासीर उठा लेते हैं और सल्फ उलमा के फहम को बयान करते हैं, मिर्जा जी जो इमारत तामीर करना चाहते थे वह धड़ाम से जमीन पर आ गए थे। देखो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल लेकर आए इमाम कुर्तुबी कि लोगों के सामने यानी ऐसी रिवायात को बयान मत करो जिन तक अभी उनका इल्मी इर्तका हुआ नहीं है, उनकी अकलें उस बात तक अभी नहीं पहुंच सकती, तुम लोगों को फितने में मुब्तला कर दोगे। अब कोई मिर्जा जी से पूछे, मिर्जा जी अगर समझ बॉन्ड नहीं सूंगी हो तो जरा बताएं इस बात को कि क्या अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को हक छुपाने की तालीम दे रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे, ये तो भी आगे मैं मजीद इसके ऊपर आप भाइयों के सामने कुछ चीजें रखूंगा। उसके बाद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को वो बयान करो जिसको वो समझते हो। क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए? लीजिए जनाब, ये तो डायरेक्ट हदीस रसूल भी आ गई ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने बयान की है कि लोगों को वो चीज बयान करो जिसको वो समझ सकते हो। अब मिर्जा जी और मिर्जा जी के कबील के जितने लोग हैं उनसे हम ये कहेंगे बताइए जनाब, अब क्या आपके फार्मूले के हिसाब से क्या नाउजुबिल्लाह खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से भाग भाग छुपाते थे या छुपाने की तालीम दी? बात सीधी सी है कि हर वो बात जिसे समझने की अवाम में इस्तेदाद होगी वो उन्हें समझाई जाएगी। दूसरी क्लास के बच्चे को अलजबरा ना पढ़ाने के नतीजे में कभी आज तक मिर्जा जी ने इल्म रियाजी के असातिज़ा से शिकवा किया है कि तुम छोटे बच्चों से इल्म इंसा को इल्म रियाजी को छुपा रहे हो? नहीं, वहां चोचो मिर्जा जी फौरन कहेंगे नहीं वो अभी मसला ये ना कि बच्चे भी छोटे हैं, अगर तो बुनियादी मैथमेटिक्स सीखेंगे फिर वहां तक पहुंचेंगे। तब हम कहेंगे मिर्जा जी इसी वीडियो में तो आपने अवाम को लल्लू पंजू करार दिया है, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अवाम की आपने हालत बताइए कि अवाम तो इल्मी एतबार से लल्लू पंजू हैं। तो जब लल्लू पंजू हैं तो पहले उनको उनका लल और पन खत्म करो ना, उसके बाद उनको ये सारी चीजें समझाना। लेकिन नहीं, फिर तो मिर्जा जी के चूरन कहां बिकने मिर्जा जी के चूरन, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आप इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं बाज उलूम पर महमूल है जिस तरह इल्म कलाम है, या ऐसा इल्म जिसके समझने में तमाम लोग बराबर ना हो। आलिम का हुक्म यह है कि वो चीज बयान करे जो समझी जाए और हर इंसान को उसके मर्तबे के मुताबिक समझाए। लो बताइए जी, अभी आगे देखिएगा मिर्जा साहब उल्टी करेंगे कि जी ये जो लोग कहते हैं कि ये आम के लिए ये खास के लिए, अब भाई ये सल्फ का फहम, ये हमारा नहीं, ये सल्फ का फहम है कि लोगों की इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक उनको चीजें समझाई जाती हैं। अगर मिसाल के तौर पर मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी 90 साल के या तीसरे साल के लड़के से जो यानी अभी मदरसे के 90 साल में है, तीसरे साल में, अगर उसको विरासत के तमाम मसाइल हम सिखाने के लिए बैठ जाए, आप ही इंसाफ करो सब उसकी समझ में आ जाने, मिर्जा जी चोचो कहेंगे नहीं। बात तो आ गई ना घूम फिर के उसी जगह पे कि भाई लोगों को बुनियादी, और मिर्जा जी इस बात के भी मोतरिफ हैं। मजे की बात तो आप देखें कि मिर्जा जी इस बात के भी मोतरिफ हैं कि लोगों को तो बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता। तो जब बहुत सी चीजों के बारे में लोगों को नहीं पता है, आप उनको एकदम से ये सारी चीजें बयान करें जिनको अभी समझने की उनमें इल्मी सलाहियत नहीं है, कि उनको बुनियादी चीजें नहीं सिखाई गई हैं। आज हमारे कितने लोग ऐसे हैं सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हकीकी मकाम और मर्तबे को जानते ही नहीं है। यही वजह है, आप भाई अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले दिनों हमने
40-45 दुरूस का एक पूरा सिलसिला मार्फत सहाबा व अहले बैत वाला वो हमने शुरू किया था। इसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हवाले से 10 इल्मी नुकात भाइयों के आगे रखे गए, उनको समझाया गया कि सहाबा के हवाले से चीजें सीखना समझना जरूरी है। हम अपने साथ खुद इंसाफ करें, क्या हर बंदे को वो बातें पता होती हैं? नहीं पता होती। अब अगर आप उनको एकदम सहाबा के इख्तिलाफ के जिनको ना तो आप सही तरह समझते हो और जानते भी हो तो जानबूझ के छुपा लेते हो, अगर आप उन्हें बयान करें तो एकदम तो उनकी समझ में नहीं आने, उनको तो सहाबा से बरगजिश्ता ही होना है। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं आयत की तहकीक यह है कि आलिम जब इल्म को छुपाने का इरादा करेगा तो नाफरमान होगा, और जब इल्म छुपाने का इरादा ना करे तो तबलीग लाजिम नहीं, पहुंचाना लाजिम नहीं। जब उसे मालूम हो कि गैर के पास ये इल्म है और जिससे कोई बात पूछी जाए तो उस आयत और हदीस की वजह से उस पर तबलीग करना वाजिब है। और काफिर को कुरान और इल्म सिखाना जायज नहीं हत्ता कि वो मुसलमान हो जाए, हत्ता कि वो मुसलमान हो जाए। इसी तरह झगड़ालू, बिदती और ये बहस मुबाहिसे वाले आदमी को तालीम देना जायज नहीं कि वो अहले हक से झगड़ेगा। लीजिए जनाब, आ गई मिर्जा जी की भी तस्वीर खींच के दे दी गई, कह लो जी ये मिर्जा जी की तस्वीर है, इसे भी जरा गौर से देख लीजिए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखो कितनी वजह से कि ऐसे आदमी को भी दीन नहीं सिखाना चाहिए। और उसके बाद तो कहते हैं कि वो यानी कि बादशाह को ऐसी तावील ना सिखाए जिसके जरिए वो रियाया को तकलीफ दे। बताइए जनाब, यानी कि हुकूमत को उनकी मर्जी के फतवे मत दो, हुकूमत को उनकी मर्जी के फतवे, ईमान को 2-2 टके के एवज मत बेचो, बात इंसाफ की करो। और बेवकूफ लोगों में ऐसी रुखसत ना फैलाओ कि वो ममनुआत के इर्तिकाब और वाजिबात के तर्क का रास्ता बना लें। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं? अल्लाह ताला ने जिन चीजों के मामले में यानी कि एतदाल की राह रखी है, नरमी रखी है, उसको लोगों की सवाबदीद के मुताबिक समझाओ। एक ऐसा आदमी जो बेअमली के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, आपने उसको दीन का मसला कह के मसला बता दिया, वो बेअमली के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, वो इसी को दलील बना लेगा और बेअमल हो जाएगा। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अब बताइए। तब मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी बात इस तरीके से नहीं है, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से कोई कहे कि मौसूफीन बात इस तरीके से नहीं है, बात यह है कि लोगों को पहले इब्तिदा से सिखाया जाएगा। आप कहे कि ठीक है, तो फिर इब्तिदा से कौन सा सिखाया? तो आप कौन सा इब्तिदा से सीखने बैठे? आप कौन सा इब्तिदा से सीखने बैठे? जिस तरीके से आपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के सारे दौर गुजारे, क्या उसी तरीके से आपने मदारिस के या उलमा की मजालिस और महफिलें उसी तरीके से गुजारी है? या आपने कुतुब का मुताला उसी तरीके से किया है? नहीं, आपने इस कब्र के, इस पेट के घड़े को भरने के लिए तो सब कुछ सीखा, कब्र के घड़े को भरने के लिए कुछ सीखा नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमसे छुपा लिया? भाई हम सारे, हम भी तो अवामी है ना, हम कौन से उलमा है? हमारी हैसियत ज्यादा में ज्यादा एक तालिब इल्म की। तो आप समझें कि आज अगर हम भी बयान कर रहे हैं तो ये भी तो उलमा की मेहरबानी है ना। एक तो अल्लाह का करम व फजल है कि उसने हमें हिदायत दी, और उसका ही करम व फजल है वो आगे हमें हिदायत पर रखे। और फिर ये उलमा की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें सिखाया समझा, उन्होंने हम जैसों को सिखाया समझा, तो आज हम इस लायक हुए ना कि अपने दीन के बारे में कोई बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आप समझें कि ये कोई खुदा ना खास तो ये कोई हमारी बात नहीं है, ये सल्फ का फहम है कि लोगों को उनकी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक सिखाओ समझाओ। और देखें, ये यहां पे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत को दर्ज किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया है। ये यहां इमाम कुर्तुबी ने खुद तवज्जो दिला दी है कि इस रिवायत की असनादी हैसियत ठीक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया है कि आपने कहा, हिकमत को उसके अहल से मत रोको वरना तुम उन पर जुल्म करोगे, और जो अहलियत नहीं रखते उन लोगों को हिकमत न सिखाओ वरना तुम हिकमत पर जुल्म करोगे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, मोतियों को खिंजीरों की गर्दनों में ना लटकाओ। देखें, ये दोनों रिवायतें साबित शुदा नहीं है, लेकिन आप समझें कि इमाम को ये सल्फ है ना इमाम कुर्तुबी। या तो ये है कि वही बात कि मिर्जा जी इसी वीडियो में कहेंगे मैं अब एक पेशन गोई करने लगा हूं कि बहुत जल्द नासरुद्दीन अलबानी को भी अहले हदीस जमात से बाहर कर देंगे। हम मिर्जा जी छोड़े ना, ऐसी पेशन गोइयां नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हम नासरुद्दीन अलबानी तो हमारे सरों का ताज है, लेकिन आप जरा समझें इस बात को, इमाम कुर्तुबी को आप अहले सुन्नत से खारिज ना कर दें मिर्जा जी, क्या आपके खिलाफ चले गए?
یہ سلف صالحین یہ جو آپ کے خلاف جو چلے گئے اور آپ کے بتائے ہوئے فہم کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے بالکل، کہیں آپ انہیں اہل سنت میں سے خارج مت کر دیجیے گا.